ओम शांति। आज के बाबार 24/12/2020 मुरली। आज के मुरलिर विशेष महाबाक्य बाबा बोलছেন बच्चे ए देह হচ্ছে একটা খেলনা আর আত্মা হচ্ছে এর চৈতন্য চাবি। তো বাবা এখন সঙ্গম যুগে এসে আবার আত্মার মধ্যে শক্তি ভরে দিচ্ছেন, অর্থাৎ চাবি ভরে দিচ্ছেন। তো এই খেলনা আবার 5000 বছর পর্যন্ত চলছে বা খেলা করছে। তো বাবা আরেকটা নতুন কথা বললেন কি, যে খেলনা খেলা করে তাকে কি বলা হয়? কাঠপুতলি। তো আমরা এখন কাঠপুতলির মতন 5000 বছর আত্মা এই দেহরূপী খেলনা নিয়ে এই সৃষ্টি নাটক মঞ্চে খেলা করছে। তো কাঠপুতলির মতন আমরা খেলা করছি। তাই বাবা বলছেন যেমন একটা গাড়ির মোটরে কি করতে হয়, ব্যাটারি ভরতে হয়। ব্যাটারি যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে তো গাড়ি চলবে না। তো সেরকম আত্মারূপী ব্যাটারিকে চার্জ করতে হবে। তো যত বাবাকে ইয়াদ করব আমরা তত আমাদের ব্যাটারি চার্জ হবে আর আত্মা 5000 বছরের জন্যে আবার শক্তিশালী হয়ে যাবে। বাবা বললেন যে বাবা যখন আসে তখনই আসলে বিজয়া দশমী হয়। বাবা এসে মায়া রাবণের উপরে আমাদেরকে বিজয় প্রাপ্ত করাচ্ছেন। তো এখন 5টা বিকার নরের মধ্যে, 5টা বিকার নারীর মধ্যে, এটাই হচ্ছে মায়ার 10টা রূপ। তো বাবা এসে আমাদেরকে রাবণের 10টা মাথার উপরে বিজয় প্রাপ্ত করাচ্ছেন। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে বাবার সেবায় তোমাদেরকে হাড্ডি হাড্ডি দিতে হবে। যারা দিন রাত বাবার সেবায় বিজি থাকে তারাই সঙ্গম যুগে বাবার দিলরূপী সিংহাসনে বসে যায়, এবং যারা বাবার দিলরূপী সিংহাসনে বসে তারাই ভবিষ্যতে রাজ সিংহাসনে বসার অধিকারী হয়ে যায়। তো তোমাদেরকে বাবার সেবার জন্যে জব থেকে বা চাকরি থেকে ছুটি নিতে হবে, সেখানে হাফ বেলা করে আবার বলো যে আমরা গডলি সার্ভিস করব। তো এরকম বাবার সেবার জন্য তোমরা হাফ স্যালারিতেও তোমরা ছুটি নিয়ে চলে আসো আর বাবার সেবা করো। তারপরে আজকে বাবা বললেন যে যদি কোনো ব্রাহ্মণী নিমিত্ত দিদি বা ভাই তোমার সামনে বসে যোগ নাও যদি করাতে পারে, তাও তুমি নিজে যোগ করার অভ্যাস করো, নিজের জন্য নিজে পরিশ্রম করো এবং নিজেকে আত্মা ভেবে পরমধাম পর্যন্ত বাবার কাছে যাও। যোগের বিভিন্ন বিধি দ্বারা তুমি যোগ অভ্যাস করো। তোমাকে যোগে খুব শক্তিশালী হতে হবে। তারপরে বাবা আজকে বললেন যে যারা ব্রিলিয়েন্ট স্টুডেন্ট তাদেরকে ক্লাসরুমে সবার আগে বসানো হয়, কিন্তু এখানে তো বাবা সে নিয়ম করতে পারে না, কারণ বাচ্চারা তখন দুঃখী হয়ে যাবে। এই জন্যে বাবা এসব কিছু বলে না। তারপরে বাবা বলছেন যে যারা বাবার দিলরূপী সিংহাসনে বসতে চায় তাদেরকে বারবার সেবাতে ছুটতে হবে, খুব দিন রাত সেবা করতে হবে। তো আসুন এবার আমরা পুরো মুরলি विस्तारितভাবে শুনব। मीठे बच्चे, यह शरीर रूपी खिलौना आत्मा रूपी चैतन्य चाबी से चलता है। तुम अपने को आत्मा निश्चय करो तो निर्भय बन जाएंगे। बाबा बोलছেন এই দেহরূপী খেলনা আত্মারূপী চাবি দ্বারা চলে। তো তোমরা নিজেকে আত্মা ভাবো, তাহলে কোনো রকম ভয় তোমাদের মধ্যে থাকবে না। আজকের প্রশ্ন, आत्मा शरीर के साथ खेल खेलते नीचे आई है, इसलिए उनको कौन सा नाम देंगे? বলছে আত্মা দেহের সঙ্গে খেলা করতে নিচে নেমেছে, এই জন্য আত্মাকে কি একটা নাম দেওয়া যেতে পারে? তো বাবা উত্তরে বলছেন कठपुतली। जैसे ड्रामा में कठपुतलियों का खेल दिखाते हैं, वैसे तुम आत्माएं कठपुतली की तरह 5000 वर्ष में खेल खेलते नीचे पहुंच गई हो। বলছেন যেমন ড্রামাতে কাঠপুতলির খেলা হয়, ঠিক সেই রকম তোমরা এখন কাঠপুতলির খেলা করতে করতে 5000 বছর খেলা করেছো, এখন তোমরা নিচে পৌঁছে গেছো। বা পাए हैं तुम कठपुतलियों को ऊपर चढ़ने का रास्ता बताने। আবার বাবা এসেছেন কাঠপুতলিদেরকে উপরে ওঠার রাস্তা বলতে। अब तुम श्रीमत की चाबी लगाओ तो ऊपर चले जाएंगे। বলছে এখন তোমরা শ্রীমত রূপী চাবি লাগাও, তাহলে উপরে উঠে যাবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে महफिल में जल उठी समा,
परवाने के लिए। বাবা বলছেন যে মেহফিলে क्षमा জ্বলে গেছে क्षमा প্রকাশী বাবার জন্যে। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को श्रीमत देते हैं। कभी कोई की चलन अच्छी नहीं होती तो माँ बाप कहते हैं तुमको सल ईश्वर मत दे। বলছে কোনো বাচ্চাদের যখন চাল চলন ঠিক থাকে না তখন মা বাবা কি বলে যে ভগবান তোমাকে যেন বুদ্ধি দেয়। विचारों को यह पता ही नहीं कि ईश्वर सचमुच मत देते हैं। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, अर्थात रूहानी बाप बच्चों को श्रेष्ठ मत दे रहे हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। বলছেন এখন বাবা তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠ মত দিচ্ছেন শ্রেষ্ঠ হওয়ার জন্যে। अभी तुम समझते हो हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाप हमको कितनी ऊंच मत दे रहे हैं। हम उनकी मत पर चलकर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो सिद्ध होता है मनुष्य को देवता बनाने वाला वही बाप है। सिख लोग भी गाते हैं ना, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार। বাবা বলছেন যে শিখ ধর্মেও লেখা আছে যে মানুষকে দেবতা বানাতে সময় লাগেনি। তো এখন শিব বাবা এসেছেন আমাদেরকে সঙ্গম যুগে মনুষ্য থেকে একদম দেবতা বানাতে। তো খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাবা আমাদেরকে এত উঁচু বানিয়ে দিচ্ছেন। उनकी महिमा भी गाई है। एकम ओमकार कर्ता पुरुष निर्भय। তো শিখ ধর্মের গ্রন্থে খুব সুন্দর সুন্দর শব্দ আছে। একম ওমকার বা কর্তা পুরুষ বা নির্ভয় মানে যে সবসময় নির্ভয় আছে, যে কর্তা পুরুষ মানে পুরো জগতের যিনি আসল কর্তা এবং একম ओमकार अर्थात যিনি ओमकार निराकार। तो अपने को आत्मा समझते हो ना, आत्मा को कोई भय नहीं रहता। बाप कहते हैं निर्भय बनो। भय फिर काहे का, तुमको कोई भय नहीं। तुम अपने घर बैठे भी बाप की श्रीमत लेते रहते हो। अब श्रीमत किसकी, বলছে তোমরা ঘরে বসেও বাবার শ্রীমত নিতে পারো। तो किसের শ্রীমত আমরা নিচ্ছি, कौन देते हैं, यह बातें गीता में तो है नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो, बाप कहते हैं तुम पतित बन गए हो, अब पावन बनने के लिए मामे कम याद करो। यह पुरुषोत्तम बनने का मेला संगम युग पर ही होता है। बहुत आकर श्रीमत लेते हैं, इसको कहा जाता है ईश्वर के साथ बच्चों का मेला। বাবা বলছেন যেটা পুরুষোত্তম হওয়ার মেলা সঙ্গম যুগেই হচ্ছে। তো বাবা এখন আমাদের শ্রীমত দিচ্ছেন। এখন বাচ্চাদের সঙ্গে परमात्मा पितार मंगल मिलन मेला चलছে। ईश्वर भी निराकार हैं, बच्चे आत्मा भी निराकार हैं, हम आत्मा हैं। यह पक्की पक्की आदत डालनी है। जैसे खिलौने को चाबी दी जाती है तो डांस करने लग पड़ते हैं, तो आत्मा भी इस शरीर रूपी खिलौने की चाबी है। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। বা বলছে দেহের মধ্যে যদি আত্মা না থাকে তাহলে কিছু করতে পারবে না। তো এখন তোমরা হচ্ছ চৈতন্য খেলনা, জীবন্ত খেলনা। खिलौने को चाबी नहीं दी जाए तो काम का नहीं रहेगा। তো যেমন কোনো খেলনাতে যদি চাবি না লাগানো হয় তাহলে সেটা খেলনা কোনো কাজের থাকে না। आत्मा इनमें न हो तो कुछ भी कर न सके। तुम हो चैतन्य खिलौने। खिलौने को चाबी न दी जाए तो काम का नहीं रहेगा, खड़ा हो जाएगा। आत्मा भी चैतन्य चाबी है और यह अविनाशी अमर चाबी है। बाप समझाते मैं देखता ही हूँ आत्मा को। बाबा বলছেন যে আমি आत्माকেই দেখছি, आत्मा सुनती है। यह पक्की आदत डालनी है। इस चाबी बिगर शरीर चल न सके।
इनको भी चाबी अविनाशी मिली हुई है। 5000 वर्ष इनकी चाबी चलती है। बाबा বলছেন ব্রহ্মা বাবার শরীরেও আত্মা আছে, তো তাই ওনার শরীরকেও খেলনা বলা হবে এবং আত্মা রূপী চাবি আছে ওর মধ্যে, তো শরীর চলছে। चैतन्य चाबी होने कारण चक्र फिरता ही रहता है। यह है चैतन्य खिलौने। बाप भी चैतन्य आत्मा है। जब चाबी पूरी हो जाती है तो फिर बाप नए सिरे युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर चाबी लग जाएगी। अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा बोलছেন যে বাবা এসে আমাদেরকে বলছেন বাচ্চে খুব যোগ লাগাও, তো যত আমরা যোগ লাগাবো, যত বাবার ইয়াদে থাকার পরিশ্রম করব, তত আত্মার মধ্যে চাবি লেগে যাবে এবং আত্মা আবার পুরো 5000 বছরের জন্য আবার পুরো চার্জ হয়ে যাবে। তখন এই দেহরূপী খেলনা দ্বারা আত্মা খেলা করবে। तो जैसे मोटर से पेट्रोल खत्म होने पर फिर भरा जाता है ना, बैटरी खाली होती है तो लाइट खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी भरती है। जितना याद करेंगे उतना पावन भरती जाएगी। इतना 84 जन्मों का चक्र लगाए बैटरी खाली हो गई है, सतो रजो तमो में आई है। अब फिर बाप आए हैं चाबी देने अथवा बैटरी को भरने। বাবা বলছেন আবার বাবা এসেছেন চাবি দিতে বা তোমার ব্যাটারিকে ভরতে। पावर नहीं है तो मनुष्य कैसे बन जाते हैं। तो अब याद से ही बैटरी को भरना है। इनको ह्यूमन बैटरी कहें। बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाओ। यह ज्ञान एक ही बाप देते हैं। सदगति दाता वह एक ही बाप है। अभी तुम्हारी बैटरी सारी भरती है, जो फिर 84 जन्म पूरे पाठ बजाते हो। বাবা বলছেন এখন ব্যাটারি একদম ভরপুর হয়ে যাচ্ছে, আবার তোমরা 84 জন্ম পুরো পাঠ প্লে করবে। जैसे ड्रामा में कठपुतलियाँ नाचती है ना, तुम आत्माएं भी ऐसे कठपुतलियों मिसल हो। ऊपर से उतरते 5000 वर्ष में एकदम नीचे आ जाते हो, फिर बाप आकर ऊपर चढ़ाते हैं। वह तो एक खिलौना है। बाप अर्थ समझाते हैं चढ़ती कला और उतरती कला का। 5000 वर्ष की बात है। तुम समझते हो श्रीमत से हमको चाबी मिल रही है। हम फुल सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सारा पाठ रिपीट करेंगे। कितनी सहज बात है समझने और समझाने की। फिर भी बाप कहते हैं समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा। तुम कितना भी माथा मारो जास्ती समझेंगे ही नहीं। बाप समझ तो सबको एक जैसी ही देते हैं। कहाँ भी बैठ बाप को याद करना है। भल सामने ब्राह्मणी न हो तो भी तुम याद में बैठ सकते हो। বাবা বলছেন যদি ব্রাহ্মণী বা নিমিত্ত দিদি যদি সামনে নাও থাকে তাও তোমাকে যোগ করতে হবে। मालूम है बाप की याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। तो उस याद में बैठ जाना है। कोई को बिठाने की दरकार नहीं। खाते पीते स्नान आदि करते बाप को याद करो। थोड़ा टाइम दूसरा कोई सामने बैठ जाते हैं। ऐसे नहीं कि वह मदद करते हैं तुमको, नहीं, हर एक को अपने को ही मदद करनी है। বলছেন যে যোগ শেখায় সে ভাই বা বোন নিমিত্ত দিদি তো তোমাকে অল্প সময়ের জন্য তোমাকে হেল্প করতে পারে, সাহায্য করতে পারে, কিন্তু আসল পরিশ্রম তো তোমাকেই করতে হবে। নিজের মন বুদ্ধিকে একাগ্র করা, নিজেকে আত্মা ভাবা বা নিজেকে পরমধাম পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া বা বাবার সঙ্গে সর্বসম্বন্ধের অনুভব করা বা 5টা স্বরূপে ড্রিল করা। তো যোগের যে বিভিন্ন বিধি আছে, সারা বিশ্বকে সকাশ দেওয়া, লাইট মাইট দেওয়া,
তো এই সমস্ত যে যোগের বিভিন্ন বিধি আছে সেটা তো তোমাকেই নিজের মনকে সম্পূর্ণ একাগ্র করে করতে হবে। এখানে যে সামনে নিমিত্ত বোন বা ভাই তোমাকে কতক্ষণ হেল্প করতে পারবে। तो ईश्वर ने तो मत दी है कि ऐसे ऐसे करो तो तुम्हारी दैवी बुद्धि बन जाएगी, यह टेम्पटेशन दी जाती है। श्रीमत तो सबको देते रहते हैं। इतना ज़रूर है किसी की बुद्धि ठंडी है, किसी की तेज है। पावन के साथ योग नहीं लगता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। बाप की श्रीमत नहीं मानते हैं, योग लगता ही नहीं है। तुम अभी फील करते हो हमारी बैटरी भरती जाती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है। इस समय तुमको परमात्मा की श्रीमत मिल रही है, यह दुनिया बिल्कुल नहीं समझती। बाप कहते हैं मेरी इस मत से तुम देवता बन जाते हो, इससे ऊंच चीज कोई होती नहीं। বলছেন আমার মত দ্বারা তুমি দেবতা হয়ে যাচ্ছ, এর থেকে আর বড় জিনিস কি আছে। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता, यह भी ड्रामा बना हुआ है। বলছেন সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না, এটাই ড্রামাতে ফিক্স আছে। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप संगम पर ही आते हैं, जिनका फिर यादगार भक्ति मार्ग में मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं ना, जब बाप आता है तो दशहरा होता है। 5000 वर्ष बाद हर बात रिपीट होती है। বলছেন যে আমি যখন আসি তো সত্যি করে দশহরা হচ্ছে, অর্থাৎ বিজয়া দশমী। বাবা আমাদের মনোবিকারকে শেষ করছেন, আমরা জ্ঞান যোগের বল দ্বারা নিজের 5টা বিকারকে নষ্ট করছি। তো এইভাবে রাবণের 10টা মাথা, 5 বিকার নরের আর 5 বিকার নারীর, এরকম রাবণের 10টা মাথার ভস্য হচ্ছে। तुम बच्चों को ही यह ईश्वरीय मत अर्थात श्रीमत मिलती है, जिससे तुम श्रेष्ठ बनते हो। तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, वह उतरते उतरते तमो प्रधान भ्रष्ट बन जाती है। फिर बाप बैठ ज्ञान और योग सिखलाकर सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाते हैं, बतलाते हैं तुम सीढ़ी नीचे कैसे उतरते हो। ड्रामा चलता रहता है, इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी जानते नहीं। बाप ने समझाया है, अब तुमको स्मृति आई है। हर एक के जन्म की कहानी तो सुना नहीं सकेंगे, लिखी नहीं जाती जो पढ़कर सुनाई जाए। यह बाप बैठ समझाते हैं, अभी तुम सो ब्राह्मण बने हो, फिर सो देवता बनना है। बाप ने समझाया है, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों धर्म मैं स्थापन करता हूँ। বলছেন ব্রাহ্মণ দেবতা ক্ষত্রিয় 3টে ধর্ম আমি স্থাপন করছি। अभी तुम्हारी बुद्धि में है, हम बाप द्वारा ब्राह्मण वंशी बनते हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे। বলছে এখন তোমরা জানো যে আমরা বাবা দ্বারা ব্রাহ্মণ বংশী হচ্ছি, তারপরে আমরা সত্যযুগে সূর্যবংশী হব আর ত্রেতাতে চন্দ্রবংশী হব। जो नापास होते हैं वह चंद्रवंशी बन जाते हैं। किसमें नापास? योग में। বলছে যারা যোগে নাপাস হয়ে যাচ্ছে, ফেল হয়ে যাচ্ছে, তারা চন্দ্রবংশী হয়ে যাচ্ছে। ज्ञान तो बहुत सहज समझाया है, कैसे तुम 84 का चक्र लगाते हो। मनुष्य तो 84 लाख कह देते हैं, तो कितना दूर चले गए हैं। বলছে মানুষ 84 লক্ষ জনি বলে দিয়েছে, এই জন্যে কোনো কিছু হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। সৃষ্টি কালচক্রের আয়ু তারা বিশাল বড় করে দিয়েছে। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ईश्वर तो आते ही हैं एक बार, तो उनकी मत भी एक बार ही मिलेगी। एक देवी देवता धर्म था, जरूर उन्हों को ईश्वरीय मत मिली थी। उसके आगे तो हुआ संगम युग। बाप आकर दुनिया को बदलाते हैं, तुम अब बदल रहे हो।
इस समय तुमको बाप बदलाते हैं। तुम कहेंगे कल्प कल्प हम बदलते आए हैं, बदलते ही रहेंगे। बाबा बोलছেন যে বাবা এসেছেন এখন দুনিয়াকে পরিবর্তন করতে, তো আমরা প্রতি কল্পই পরিবর্তন হচ্ছি। তো তোমরা সবাইকে এটা জানাও যে এটাই ড্রামাতে ফিক্স, যে পুরো কালচক্র পরিবর্তন হচ্ছে এই সঙ্গম যুগে, এবং আত্মাও পরিবর্তন হচ্ছে, পুরো তমপ্রধান থেকে সতপ্রধান হচ্ছে, আমরা মনুষ্য থেকে দেবতা হচ্ছি। প্রত্যেক আত্মাই তারা নিজের হিসাব কিতাব শেষ করে আবার পূর্ণ পবিত্র হয়ে তারাও পরমধাম যাবে। তো এইভাবে ড্রামার এই অন্তিম সময়ে এতগুলো পরিবর্তন লীলা শুরু হয়। तो यह चैतन्य बैटरी है ना, वह है जड़। बच्चों को मालूम हुआ है 5000 वर्ष बाद बाप आए हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत भी देते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो ना। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं। वह भी है सद्गति दाता। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं। বলছে বাবার তো নিজের শরীর নেই, তো আমি তো কারো দ্বারা মত দেব। तुम्हारे पास जब कोई आते हैं तो बोलो तुम ईश्वर की संतान हो। ईश्वर शिव बाबा है। शिव जयंती भी मनाते हैं। ऊंच ते ऊंच भगवान की ऊंच मत मिलती है, जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। वह है भी सद्गति दाता। বলছে তোমার কাছে যদি কেউ আসে তো তুমি বলো যে ভগবান হচ্ছেন পরমাত্মারা, আমরা ওনার সন্তান, আর ওনার শ্রীমতে চললেই আমাদের শ্রেষ্ঠ গতি হবে, আমাদের সদ্গতি হবে। তো পরমাত্মাই হচ্ছেন সদ্গতি দাতা। उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो किसके द्वारा मत देते हैं। तुम भी आत्मा हो, इस शरीर द्वारा बातचीत करते हो ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर न सके। निराकार बाप भी आए कैसे। गायन भी है रथ पर आते हैं। फिर कोई ने क्या बैठ बनाया है। त्रिमूर्ति भी सूक्ष्म वतन में बैठ दिखाया है। बाप समझाते हैं यह सब है साक्षात्कार की बातें, बाकी रचना तो सारी यहाँ है ना। तो रचता बाप को भी यहाँ आना पड़े। बाबा বলছেন আমার রচনা হচ্ছে এখানে, তো আমাকে এখানেই আসতে হবে। पतित दुनिया में ही आकर पावन बनाना है। यहाँ बच्चों को डायरेक्ट पावन बना रहे हैं। समझते भी हैं फिर भी ज्ञान बुद्धि में बैठता नहीं है। कोई को समझा नहीं सकते। বলছে নিজেরা না বুঝলে অন্যকে কি করে বোঝাবে। श्रीमत को उठाते नहीं तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बन नहीं सकते। जो समझते ही नहीं वह क्या पद पाएंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। বলছে যত সেবা করবে তত উঁচু পদ হবে। बाप ने कहा है हड्डी हड्डी सर्विस में देनी है। বাবা বলছেন হাড্ডি হাড্ডি তোমাকে সেবায় দিতে হবে। ऑल राउंड सर्विस करनी है, सब रकम सेवा करते হবে। बाप की सर्विस में हम हड्डी देने भी तैयार हैं। बहुत बच्चियां तड़पती रहती हैं सर्विस के लिए। বলছে অনেক বাচ্চারা तड़पाए जे कि करे हमरा बाबार सेवा करब। बाबा हमको छुड़ाओ तो हम सर्विस में लग जाएं, जिससे बहुतों का कल्याण हो। सारी दुनिया तो जिस्मानी सेवा करती है, उससे तो सीढ़ी नीचे ही उतरते आते हो। बाबा বলছে যে মানুষ যারা সোশ্যাল ওয়ার্ক করছে বা এমনি লৌকিক কাজ করছে, তো তাতে তো কারো কল্যাণ হচ্ছে না, তারা তো নিচেই নামছে। তো একমাত্র বাবার সেবাতেই নিজেরও কল্যাণ হয় আর অনেকেরও কল্যাণ হয়। এটাই হচ্ছে পুণ্যের খাতা জমা করা। तो अभी इस रूहानी सेवा से चढ़ती कला होती है। हर एक समझ सकते हैं
यह फलाने हमसे जास्ती सर्विस करते हैं। सर्विसेबल अच्छी बच्चियां हैं तो सेंटर भी संभाल सकती हैं। क्लास में नंबरवार बैठते हैं, यहाँ तो नंबरवार नहीं बिठाते हैं, फंक हो जाएंगे ना। बाबा बच्चन जे स्कूले क्लासे नंबरवार स्टूडेंट बसे, যারা একদম খুব ফাস্ট স্টুডেন্ট তারা সামনে সামনে বসে, আর যারা খুব ডাল স্টুডেন্ট তারা পিছনে বসে। তো বাবা বলছে এখানে তো ক্লাসরুমে এরকম বাবা বসাতে পারে না, নাহলে বাচ্চারা ডিস্টার্ব হয়ে যাবে। समझ तो सकते हैं ना, सर्विस नहीं करते तो ज़रूर पद भी कम हो जाएगा। पद नंबरवार बहुत है ना, परंतु वह है सुख धाम, यह है दुख धाम, वहाँ बीमारी आदि कोई होती नहीं। बाबा বলছেন সত্যযুগে কোনো रोग অসুখ হয় না। बुद्धि से काम लेना पड़ता है। समझना चाहिए हम तो बहुत कम पद पा लेंगे, क्योंकि सर्विस तो करते नहीं हैं। सर्विस से ही पद मिल सकता है। अपनी जांच करनी चाहिए। हर एक अपनी अवस्था को जानते हैं। मम्मा बाबा भी सर्विस करने आए हैं। बच्चे मम्मा बाबा तो सर्विस करছেন। अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, भल नौकरी में भी हैं। उनको कहा जाता है हाफ पेपर छुट्टी लेकर जाए, সার্ভিস করো। বাবা বলছেন ভালো ভালো সেবাধারী বাচ্চারা আছে, তো তাদেরকে বাবা বলছেন যে তোমরা যদি জব করো তাহলে সেখানে এরকম কথা বলে নাও যে আমরা হাফ বেলা ডিউটি করব, হাফ বেলা আমরা গডলি সার্ভিসে যাব, তো আমাদেরকে মাইনা কম দাও, কিন্তু আমরা তো বাবার সেবাতে যাবই। तो जो बाबा के दिल पर सो तावसी तख्त पर बैठते हैं, যারা বাবার দিলে বসে তারা সত্যযুগেও একদম राज सिंहासने बसे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसे ही विजय माला में आ जाते हैं। अर्पण भी होते हैं, सर्विस भी करते हैं। कोई तो भल अर्पण होते हैं, सर्विस नहीं करते तो पद कम हो जाएगा ना। বা বলছে কেউ কেউ মানে বাবার উপরে সমর্পিত হয়ে যায় কিন্তু সেবা করে না, তো তাদের পদ তো কি হয়ে যাবে, কম হয়ে যাবে। यह राजधानी स्थापन होनी है श्रीमत से। বাবা বলছেন যে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে শ্রীমত দ্বারা। ऐसा कभी सुना? বাবা বলছে এটা কোনোদিন শুনেছো যে শ্রীমত দ্বারা রাজবংশ স্থাপন হচ্ছে, अथवा पढ़ाई से राजाई स्थापन होती है? यह कभी सुना, कभी देखा? हाँ, दान पुण्य करने से राजा के घर जन्म ले सकते हैं। बाबा বলছেন যে ভক্তি মার্গে যদি কেউ এক জন্ম খুব দান পুণ্য করে থাকে তাহলে পরবর্তী জন্মে সে রাজার ঘরে জন্ম নেয়, কিন্তু পুরো 21 জন্ম রাজবংশে জন্ম নেওয়া বাবা বলছে এটা সাধারণ ব্যাপার না, এটা একমাত্র পুরুষার্থ দ্বারা শ্রীমত দ্বারা এবং বাবার এই পড়া দ্বারাই হয়। बाकी पढ़ाई से राजाई पद पाएं ऐसा तो कभी सुना नहीं होगा, किसी को पता भी नहीं। तो बाप समझाते हैं तुमने ही पूरे 84 जन्म लिए हैं, तुमको अब ऊपर जाना है बहुत ईजी। तुम कल्प कल्प समझते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप याद प्यार भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देते हैं, तो बहुत याद प्यार उनको देंगे जो सर्विस में हैं। बाबा বলছেন যে বাবা তাদেরকে খুব याद प्यार দেবে যারা বাবার दिन रात सेवा করছে। तो अपनी जांच करनी है कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। বলছে নিজের যাচাই করো যে আমি বাবার দিলে বসে আছি। माला का दाना बन सकता हूँ, अनपढ़े जरूर पढ़े हुए के आगे भरी ढोएंगे। বলছে যারা অশিক্ষিত তারা কি করবে, যারা শিক্ষিত তাদের সামনে তাদের কাজ করতে হবে। बाप तो समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा में पाठ नहीं है तो फिर कितना भी माथा मारो चढ़ते ही नहीं। বলছে ড্রামাতে যদি পাঠ না থাকে তাহলে যতই মাথা মারো কিন্তু তারা উপরে উঠতেই পারবে না।
कोई न कोई ग्रहचारी लग जाती है। देह अभिमान से ही फिर और विकार आते हैं। मुख्य कड़ी बीमारी देह अभिमान की है। বলছে मुख्य कड़ा रोग होच्छे देह अभिमानेर। सतयुग में देह अभिमान का नाम ही नहीं होगा। सत्ययुगे देह अभिमानेर नाम गंध थाकबे ना। वहाँ तो है ही तुम्हारी प्रारब्ध। यह बाप समझाते हैं और कोई ऐसे श्रीमत देते नहीं कि अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो। বলছে আর কেউ তোমাকে এরকম শ্রীমত দেবে না যে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। यह मुख्य बात है। लिखना चाहिए निराकार भगवान कहते हैं मुझ एक को याद करो। अपने को आत्मा समझो, अपनी देह को भी याद नहीं करो। जैसे भक्ति में भी एक शिव की ही पूजा करते हो ना, अब ज्ञान भी सिर्फ मैं ही देता हूँ। বলছে যেমন তোমরা ভক্তি মার্গে এক শিব বাবাকেই পুজো করেছো, অব্যভিচারী পুজো করেছো, ঠিক সেরকম এখন আমি তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছি, তো তুমি একমাত্র আমাকেই স্মরণ করো, আর কাউকে স্মরণ করতে হবে না। আমার দ্বারাই শোনো, যা আমি তোমাকে শোনাচ্ছি সেটাই তোমরা শোনো। बाकी सब है भक्ति। अव्यभिचारी ज्ञान एक ही शिव बाबा से तुमको मिलता है। यह ज्ञान सागर से रतन निकलते हैं, उस सागर की बात नहीं। यह ज्ञान का सागर तुम बच्चों को ज्ञान रतन देते हैं, जिससे तुम देवता बनते हो। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सागर से देवता निकला, फिर रतन दिया। বাবা বলছেন যে শাস্ত্রে কত রকম গল্প লিখে দিয়েছে, যে সমুদ্র মন্থন হলো, তারপরে সেখান থেকে লক্ষ্মী বেরোলো অমৃতের কলস নিয়ে, তারপরে অনেক অনেক ভালো ভালো জিনিস বেরোলো, অনেক রত্নের থালা বেরোলো। তো বাবা বলছেন সেসব কিছু না, এখন জ্ঞান সাগর বাবা তোমাদেরকে যা সত্য জ্ঞান দিচ্ছেন, তো এই জ্ঞানের যখন তোমরা বিচার সাগর মন্থন করছো, তখন এখান থেকেই অমৃত বেরোচ্ছে, আর এটাই হচ্ছে জ্ঞান রত্নের থালা। তো বাবা এখন তোমাদেরকে পুরো রত্ন দ্বারা মালামাল করে দিচ্ছেন। तुम ज्ञान रतन चुगते हो। आगे पत्थर चुगते थे ना, तो पत्थर बुद्धि बन पड़े। अब रतन चुगने से तुम पारस बुद्धि बन जाते हो, पारसनाथ बनते हो ना। यह पारसनाथ विश्व के मालिक थे। बाबूजी लक्ष्मी नारायण एरा विश्वेर मालिक छिलो। भक्ति मार्ग में तो अनेक नाम अनेक चित्र बना रखे हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण व पारसनाथ एक ही है। नेपाल में पशुपति नाथ का मेला लगता है, वह भी पारसनाथ ही है। बाबूजी नेपाले पशुपति नाथेर मेला है, तो सेखाने पारसनाथ के बेशी तारा माने। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট। बाप ने जो ज्ञान रतन दिए हैं वही चुगने हैं, पत्थर नहीं। বাবা তোমাকে যে জ্ঞান রত্ন দিয়েছে সেটাই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে, পাথর নয়। देह अभिमान की कड़ी बीमारी से स्वयं को बचाना है। বলছেন দেহ অভিমানের কড়া রোগ থেকে নিজেকে বাঁচাও। 2 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে अपनी बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए पावर हाउस बाप से योग लगाना है। বলছেন নিজের ব্যাটারিকে ফুল চার্জ করার জন্যে পাওয়ার হাউস বাবার সঙ্গে যোগ লাগাতে হবে। आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है, निर्भय रहना है। বলছে আত্মঅভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে, নির্ভয় হতে হবে। আজকের বরদান,
सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले सम्पूर्ण मूर्त भव। बाबा বলছেন যে সর্ব সম্বন্ধ আর সর্বগুণের অনুভূতি করে সম্পন্ন आत्मा हो एवं संपूर्ण मूर्त हो। संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हैं। বলছেন সঙ্গম যুগে সকল প্রাপ্তি দ্বারা নিজেকে সম্পন্ন বানাতে হবে। তো চেক করো যে সর্ব খাজানা, সর্ব সম্বন্ধ, সর্বগুণ এবং সকল কর্তব্য দ্বারা আমরা সম্পূर्ण হচ্ছি, অনুভবী হয়েছি। यदि किसी भी बात के अनुभव की कमी है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। যদি কোনো রকম কোনো ব্যাপারে কমি আছে তোমার ভিতরে তাহলে নিজেকে সম্পন্ন বানাও। एक भी संबंध व गुण की कमी है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। বলছে যদি একটাও সম্বন্ধ বা গুণের অভাব থাকলে তাহলে সম্পূर्ण मूर्त বলা যাবে না। इसलिए बाप के गुणों व अपने आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो। এই জন্যে বাবার গুণ এবং নিজের আদি স্বরূপের গুণের অনুভব করতে হবে, তবেই সম্পূर्ण मूर्त হব। আজকের স্লোগান, जोश में आना भी मन का रोना है, अब रोने की फाइल ख़त्म करो। বলছে জোশে আসা এটাও মনের কান্না। তো বাবা বলছে এই কান্নাটাওকে এখন শেষ করো। অর্থাৎ কারো প্রতি যদি আমরা রেগে যাই তো এটা একটা মনের কান্না, তো এই কান্নাকেও বাবা বলছে বন্ধ করো। আজকে সৎগুরুবার, আজ আমরা বাবার কাছে আমাদের ভান্ডারা থেকে খুব শুদ্ধভাবে ভোগ রান্না করে বাবাকে আমরা ভোগ লাগাবো। তো যত আমরা নিজের ভান্ডারার কণা দানা বাবাকে অর্পণ করব তত বাবা আমাদের ভান্ডারা ভরপুর করবেন এবং সৎগুরুর বরদান সবসময় আমাদের মাথার উপরে থাকবে। তো চলুন আজ আমরা সারাদিন বাবাকে সৎগুরু রূপে স্মরণ করব। ওম শান্তি।